السلام علیکم، میرا نام زرید عامر ہے اور آج میں پھر سے ایک اور نئے انٹرویو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ عامر محمود ہے، جن کو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ آج یہ پھر سے ہمارے مہمان بنے ہیں اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ آپ کے زمانے کے اسکول اور آج کے اسکول میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جو آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اسکول کے حوالے سے ہے۔ اسکول میں جہاں تعلیم دی جاتی ہے، یہ بہت ایک اہم موضوع آپ نے چنا ہے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان دیکھیں تو ہمارے نبی نے تعلیم کے حوالے سے بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ کا جو آج کا موضوع ہے وہ موجودہ دور کے سکولز، اور اگر ہم ماضی میں جائیں تو ماضی کے سکول سے آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، اگر ہم اپنے وطن پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ماضی میں بھی ہمارے سکول ہماری ضروریات پورا نہیں کر رہے تھے، اور آج کے سکول بھی ہماری ضروریات پورا نہیں کر رہے تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں۔ ہم بحیثیت پاکستانی تعلیم کے معاملے میں پہلے بھی بہت پیچھے تھے اور اب بھی بہت پیچھے ہیں۔ ہم نے جدت کا نہ پہلے ساتھ دیا نہ ابھی ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم نے نہ ماضی میں وقت کے ساتھ اپنی تعلیم کو اس معیار کے مطابق لا سکے جس کی ضرورت تھی، اور موجودہ دور میں بھی وہی صورتحال ہے۔ جی ہاں، پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں اسکول اور آج کے اسکولوں سے کیسے مختلف ہیں؟ دیکھیے، مختلف تعلیم کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری ضروریات ہیں تعلیم کے حوالے سے عملی میدان میں، ہم اس کی طرف بڑھے تو ہیں، لیکن جس طرح سے ہمیں بڑھنا چاہیے یا جو موجودہ ضروریات ہیں ہم اس طرح بڑھ نہیں پائے۔ تو ہماری ماضی میں بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی، ہم نے وقت کا ساتھ تعلیم کے حوالے سے نہیں دیا، اور اب بھی ہم تعلیم کے حوالے سے وقت کا ساتھ نہیں دے پا رہے۔ ایک اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کے دور کے اسکول اور آپ کے دور کے اسکول میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ فرق دیکھیے تعلیم کے حوالے سے ہونا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے۔ بلڈنگ کی اگر بات کریں، عمارت کی بات کریں، ان میں تو بہت زیادہ جدت آ چکی، لیکن تعلیم کے حوالے سے ہم اتنے جدید نہیں ہو پائے۔ ماضی ماضی میں اگر ہم جھانک کر دیکھیں تو ماضی میں سب سے بڑا مسئلہ بلڈنگز کا ہوا کرتا تھا۔ بلڈنگز اسکولوں کی ناکافی تھیں۔ اگر ہم ماضی میں جھانکتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اسکولوں میں پراپر فرنیچر نہیں ہوا کرتا تھا، پراپر بلڈنگز نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اب ان چیزوں میں تو جدت آ گئی، لیکن تعلیم کے حوالے سے ہم اس معیار تک پہنچ نہیں پائے۔ جی ٹھیک ہے، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں طلبہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا کرتے تھے؟ جی، اگر ہم ماضی میں جھانکتے ہیں تو طلبہ اس وقت کے حساب سے تو ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے تھے جتنی ہمارے ملک میں دستیاب تھی، لیکن ہماری بدقسمتی شروع سے اب تک یہی رہی کہ ہمارے ہاں دوہرا معیار تعلیم ہے۔ اگر ہم دیہاتوں کی بات کریں، ریموٹ ایریاز کی بات کریں، وہاں ابھی بھی جدید تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے جو معیار ہونا چاہیے۔ ماضی میں دیکھیں تو تب بھی وہ معیار نہیں تھا، ناکافی سہولتیں
स्कूलों में, कॉलेजेस में पहले भी ऐसा ही था। अब भी देखा जाए तो अब भी वैसी ही सूरत हाल है। अगर हम माजी में देखें तो तालीम गरीब और अमीर का एक लेवल एक मुकर्रर कर दिया गया था, अब भी वही मियार है। यानी अगर देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माजी में भी तालीम हर पाकिस्तानी के लिए लाजमी और मुफ्त होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। और आज के दौर में भी अगर हम बात करें तो तालीम हर पाकिस्तानी के लिए लाजिम और मुफ्त, या कम अज कम उसकी फीस या अखराजात इतने लिए जाएं जो हर पाकिस्तानी के लिए काबिल बर्दाश्त हो। लेकिन ऐसा शुरू से अब तक नहीं हो पाया। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ाने के तौर तरीकों के मुतालिक है। अम, पहले के जमाने में उस्ताजा बच्चों को कैसे पढ़ाते थे? अगर आप इसका मवाजना माजी और हाल में करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माजी के असातिज़ा मौजूदा हालात में जो असातिज़ा हैं, मौजूदा हालात में जो असातिज़ा हैं उनसे ज़्यादा डिवोटेड और मुखलिस हुआ करते थे। वो वक्त की परवाह किए बगैर अपने तलबा को वक्त दिया करते थे। लेकिन अब इस मौजूदा दौर की बात करें तो मौजूदा दौर में तालीम भी एक प्रोफेशन बन गया है। तो उस तरह से असातिज़ा टाइम नहीं दे पाते जिस तरह माजी में दिया करते थे। जी ठीक। क्या पहले के दौर के क्लासरूम्स और आज के दौर के क्लासरूम्स में फर्क है? जी, जैसे मैंने पहले कहा कि क्लासरूम का फर्क कोई ऐसा मैटर नहीं रखता। असल में तालिब इल्म और उस्ताद के दरमियान जो रिश्ता है तालीम और ताल्लुम के हवाले से, वो मजबूत और गहरा होना चाहिए। माजी में अगर अमारत की बात करें या क्लासरूम की बात करें तो वो सहूलतें मुयस्सर नहीं थीं जो अब मुयस्सर हैं। लेकिन तालीम का मेयार अगर मैं मुवाजना करूं तो पहले की निस्बत तालीम का मेयार गिरा है। क्लासरूम या बिल्डिंग खूबसूरत ज़रूर हुई हैं, लेकिन तालीम के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। जी ठीक है। अगला सवाल ये है कि क्या पहले के दौर में भी होमवर्क ज्यादा दिए जाते थे? जी देखें, माजी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था कि होमवर्क या अमली मश्क, घर का काम, ये बिल्कुल दिया जाता था ताकि तालिब इल्म स्कूल से फारिग होने के बाद अपनी मसरूफियात तालीम के हवाले से बरकरार रख सके, और घर में भी जो वो सीख के एक क्लासरूम में या एक स्कूल में आया है उसकी दोहराई कर सके और उसको रिपीट कर सके, उसकी मश्क कर सके, ताकि वो चीज़ें उसको अजबर हो जाएं। जी ठीक। पहले के स्कूल्स के कवायद जवाबित आजकल के स्कूल्स के जो है कवायद जवाबित से किस तरह मुकाबिल है? देखिए, कवाइद ज़वाबित वक्त की रफ्तार के साथ बिल्कुल देखा जाए तो तब्दील हुए हैं। कवाइद ज़वाबित पहले जिस दौर में हम रहते थे, हमारा निज़ाम, तालीम का निज़ाम और मौजूदा तालीम का निज़ाम, इसमें फ़र्क वक्त के साथ साथ जो आया है। कवाइद ज़वाबित को पहले भी उस हालात के मुताबिक मनवाया जाता था, अब भी मनवाया जाता है। तो अब सिर्फ फ़र्क ये है कि अब मौजूदा दौर में बहुत सी मवासलाती चीज़ें आ गई, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल,
तो बहुत सी चीज़ें तलबा तक अपनी बात कोई भी इदारा पहुंचाने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेता है, लेकिन माजी में ये सहूलियात दस्तयाब नहीं थी। तो जो उस वक्त के हालात थे उसके मुताबिक ये चीज़ें तलबा को कन्वे की जाती थी। ठीक है, आपको अपने दौर की स्कूल में कौन सी ऐसी सरगर्मी है जो बहुत ज्यादा पसंद थी? देखिए, हमारे दौर में अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें तो हफ्ते में हमारा एक बज़्म अदब का एक दौरानिया होता था, एक पीरियड होता था, ट्यूटोरियल पीरियड कहते थे, जिसमें एक मुख्तलिफ क्लासेस मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चे, मुख्तलिफ उम्र के बच्चे इकट्ठे होते थे। उसमें तलबा को कुछ कहने का, कुछ बोलने का, अपनी बात मनवाने का, अपने आप को जाहिर करने का मौका दस्तयाब होता था। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। शायद इस दौर में वो वक्त के साथ साथ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो उस दौर में इससे ये होता था, कोई अगर स्पीच अच्छी कर सकता है तो वो अपनी बात, अपना स्पीच करके अपनी बात दूसरे तलबा तक पहुंचाता था। अगर किसी को शेर व शायरी का शौक था वो अपने शेर सुनाता था। इसी तरह जो भी टैलेंट होता था वो उसका नुमायां हो जाता था। जी, ठीक है। क्या आपके ख्याल में पहले के दौर के तालिबे इल्म उस्ताजा क्या ज्यादा एहतराम करते थे? जी बिल्कुल, आपने ये बात बजा कही कि माजी में जो तालिब इल्म और मुअल्लम का रिश्ता था वो मैं मौजूदा दौर में नहीं देख पा रहा। दोनों तरफ से, तालिब इल्म की तरफ से भी एक अकीदत और मोहब्बत का इजहार अपने मुअल्लम के साथ होता था, और उस्ताद की तरफ से भी एक तालिब इल्म के साथ बिल्कुल अपनी औलाद जैसा रवैया रखा जाता था। जी, ठीक है। इंटरनेट के बगैर आप अपने दौर में स्कूल प्रोजेक्ट्स कैसे मुकम्मल किया करते थे? देखिए, उस वक्त चूंकि ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी, तो जो भी उस्ताद ने पैगाम अपना या तरबियत के हवाले से जो भी दर्स देना होता था वो बिलमुकाबिल बैठ के एक क्लासरूम में ही दिया जाता था। चूंकि उस वक़्त ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी, तो उस वक़्त इन चीज़ों का कोई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता था, या चीज़ें मौजूद ही नहीं थीं। तो जो उस वक़्त के दस्तयाब वसाइल थे, उस्ताद और मुअल्लिम उन चीज़ों को ही बरोए कार लाकर अपने तालिब इलम तक अपना पैगाम या दरसो तदरीस के हवाले से जो भी उसने मटेरियल मवाद तलबा को देना होता था वो दिया करते थे। ठीक है, क्या आपके दौर के इम्तिहानात आज के दौर के इम्तिहानात से ज्यादा मुश्किल है या आसान? देखिए, माजी और मौजूदा दौर के इम्तिहानी निज़ाम को का अगर मुवाजना किया जाए तो माजी का इम्तिहानी निज़ाम मौजूदा दौर के इम्तिहानी निज़ाम से मुश्किल था। एक तवील किसी भी सवाल का जवाब देना, उसकी गहराई में जाकर जवाब दिया जाता था, जबकि मौजूदा दौर में एक ऑब्जेक्टिव टाइप इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो गया, या सिलेक्ट ऑप्शन का सिलसिला शुरू हो गया, जो माजी की निस्बत बहुत आसान है। ठीक है, आपके दौर में तुलबा मोबाइल फोन्स के ना होने की वजह से आपस में एक दूसरे से ताल्लुक कैसे रखते थे? देखिए, माजी में मोबाइल की सहूलत मुयस्सर ना होने की वजह से तलबा, एक तो स्कूल में जब क्लासरूम में मुलाकात हो जाती थी उसी में ये चीज़ें तय हो जाती थी कि शाम के वक्त अगर कोई पढ़ाई का मज़ीद
कोई वक्त मुकर्रर करना है तो उसी वक्त ये चीज़ें मुकर्रर कर ली जाती थी। तो ये जदीद मवासलाती निज़ाम मौजूद ना होने की वजह से चीज़ों को उसी हिसाब से मैनेज कर लिया जाता था। जी ठीक है। क्या टेक्नोलॉजी ने तुलबा के पढ़ाई के निज़ाम पर किस तरह तब्दीली पैदा की है? जदीद टेक्नोलॉजी जो अब मौजूदा दौर में हम अपने वतन में तालीम के हवाले से आ, इख्तियार की है हमने, उससे ऐसा है कि तालिब इल्मों में बहुत सी चीज़ों में बेहतरी भी आई है। मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल, मीडिया का इस्तेमाल, इससे हम बहुत जल्द बैरूनी दुनिया से वाकिफ हो जाते हैं। तालीम के हवाले से कोई भी नई रिसर्च या इस हवाले से कोई भी नया मौक़िफ़ हमारे सामने आ जाता है तो जिद्दत जो इस वक्त हमारे तालीम में आई है उसका ये फ़ायदा ज़रूर है। जो चीज़ें हैं तलबा तक या आम लोगों तक जल्दी पहुंच जाती हैं। जी ठीक है। अगर आपको आज के स्कूल में पढ़ने का दोबारा मौका दिया जाए तो आप किस सरगर्मी या किस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करेंगे? देखें, एक मशहूर कौल है कि इंसान को हमेशा इल्म की तल में रहना चाहिए। तो आप जो बात कर रहे हैं कि किस चीज़ का मौका मिले, तो अगर हम माजी की तालीम हासिल कर चुके हैं तो मौजूदा दौर में तालीम में बहुत सी जिद्दत आ चुकी है। तो मौजूदा हालात में जो भी एक जदीद चीज़ या तालीम के हवाले से या दुनिया में जो भी जिद्दत आ रही है, जो तेज़ी आ रही है, जो एडवांस चीज़ें आ रही हैं, उन उन चीज़ों का इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। देखिए, कंप्यूटर, अगर हम माजी में बात करें तो कंप्यूटर एक नापेद चीज़ थी, स्कूलों में उसकी तालीम नहीं दी जाती थी। मौजूदा दौर में कंप्यूटर एक आम चीज़ हो चुकी है। तो जो पुराने लोग या पुराने तलबा इस चीज़ को सीख नहीं पाए, उन्हें चाहिए कि वो इन चीज़ों में, इन सरगर्मियों में हिस्सा लें और जदीद चीज़ों को सीखें। आपके ख्याल में आज के दौर के तुलबा पुराने स्कूल से क्या सीख सकते हैं? आज के तलबा अगर माजी में झांकें तो उन्हें सीखने की चीज़ तालिब इल्म और उस्ताद का जो एक मजबूत रिश्ता, एक प्यार और मोहब्बत वाला रिश्ता है, वो सीखना चाहिए। आपको अपने जमाने के स्कूल्स में सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आती है? देखिए, अगर हम माजी में झांकें तो असातिज़ा का तलबा के साथ जो रब्त, जो खलूस, जो प्यार, पढ़ाई के हवाले से उनकी डिवोशन, वो चीज़ें अभी भी याद आती हैं। जी ठीक है। आपके ख्याल में कौन सा तालीमी निजाम बेहतर है, पहले का या आज का? देखें, माजी से कुछ सबक हासिल करके जो मौजूदा निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सकता है। मौजूदा निज़ाम जाहिर है वक्त के मुताबिक चल रहा है, इसमें एक जिद्दत है। आने वाले वक्त में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनका इस्तेमाल है, माजी में ये चीज़ें नहीं थी। तो मौजूदा निज़ाम में पुरानी चीज़ों से एक सबक हासिल करके जिद्दत मज़ीद लाई जा सकती। तो मौजूदा निज़ाम में हम माजी से वही चीज़ें इख्तियार करें जो माजी में बेहतर थीं। जी ठीक है। इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये इंटरव्यू का सेशन इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम किसी और मौजू के साथ फिर से मिलेंगे। आपके इस कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज़।